शो। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली वेट किया ड्यूरिंग द ब्रेक। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम। Hi, Assalamu alaikum. I'm going to speak in English, okay? या दैट्स फाइन। Okay. So, my boyfriend came here to this country. He's from India. He came like 8 years ago, ओके 9 years ago now. He came with his wife and kids. But they are divorced now for 4 years. They are separated. They didn't get the divorce because he needs the papers for the divorce, the marriage certificate. या But he can't do it here because he doesn't have a passport. ओके Okay, so what can I do just to help in this case? To do a visa, to apply for a visa, ऑलराइट। for a एंड divorce, व्हाट नेशनैलिटी and for a आर यू? passport. I'm Portuguese. Portuguese. And how long you been together with this gentleman? We have been together now for 1 year and a half. All right, thank you so much. I'll give you the answer. Okay. Thank Now, I am taking the assumption that, of course, your boyfriend does not have valid leave to remain, and hence the reason you've asked for clarification or assistance in the matter. Now, you're right, because in this country, unless you are free from your previous marriage, you cannot go ahead and get married again. So, in this relationship, you have rightly realized that your partner needs to get the divorce confirmed from this country from his first wife before he can get married to you. He can either get the divorce proceedings conducted in this country, or if the marriage took place in Pakistan or India, I think you mentioned he's from India, so if the marriage were conducted in India, then see if there is a possibility he can attain the divorce in India on proxy. If that is applicable in the Indian law, he can check that out, and then of course he can get married to you. Now, in the meanwhile, if you want to submit an application, as I mentioned, as I asked you, that you're a Portuguese national, so you're EA national, there is an application within the EA regulation known as an extended family member application, where if you're in a durable relationship with a person, you can make an application. Now, interestingly, if you look at the Home Office policy, it states that as far as the Home Office is concerned, they interpret a durable relationship as with someone who has been living together with the partner, not with the partner, with the living partner for 2 years. But in EA regulation, there is no definition that you must be living together for 2 years. So as far as we are concerned, meaning the people who work in the legal field, we submit these durable relationship applications as long as there is some subsistence in the relationship. There's some substance in the relationship as well. So as far as my thoughts in the matter are concerned, you can still make an application as an extended family member for your boyfriend on the basis that you've been in a durable relationship for a year and a half, and the Home Office will consider that application. Now, with the new case law, if the application is refused, you will not be given an in-country right of appeal, but you can still challenge that decision by means of a judicial review application, for which I would strongly advise you to go and seek professional help, because the format of the show is only to give you information. Now, as far as the future of you and your boyfriend, that will largely, and if you want to get married, then of course the biggest hurdle in you getting married with him is the divorce itself, for which then he can take action, go seek a professional who can assist him in seeking a divorce order from this country, or seek help from getting a divorce back in India if originally the marriage took place in India while he is here. But as far as the visa is concerned, or if you want to try to regularize his status, then of course you can make an application, or your boyfriend can make an application based on the fact that you're sponsoring him, and the application would be under the EA regulation, and the subheading would be extended family member on the basis that you're in a durable relationship. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. Hello. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो तारिक भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी. कि मेरे पास है ना पोर्टुगीज पासपोर्ट है, और मेरे पास मेरा घर भी है इंग्लैंड जी, और मेरे यूके में, और मेरे को मेरी सिस्टर को विजिट के लिए बुलाना क्या है जी. तो कितना
बैलेंस यहाँ पे चाहिए और कितना बैलेंस इंडिया में चाहिए? ऑलराइट, बड़ी मेहरबानी। देखें, मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं, लोग ये बहुत पूछते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज बैलेंस। आपने जब एप्लीकेशन डालनी है, आपने ये प्रूव करना है आपकी सिस्टर ने कि उनके पास पैसे हैं कि शी कैन अफोर्ड टू पे फॉर द ट्रैवलिंग एंड पे फॉर हर विजिट। अब अगर आप पैसे दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं, इधर की बात करते हैं कि ये ले जी मेरे पास 2000 पाउंड है, मैं अपनी बहन के लिए दूंगा, तो फिर जाहिर बात है कि आपकी और सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिकॉज अगर आपके पास टोटली 2000 पाउंड अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं तो वो होम ऑफिस वाले बात सोच सकते हैं कि जी क्या सारे के सारे एक ही दफ़ा अपनी बहन पे लगा देने, कौन बंदा करता है। तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास थोड़े 5-6 हज़ार हों जिसमें से आप कह रहे हैं कि मैं 2000 बहन के लिए निकालने लगाऊँ, या अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास है ही सिर्फ 2000, तो आप उसमें से बोले मैं बहन के लिए सिर्फ 500 निकाल के दूंगा। ऑन दी अदर हैंड, जब आपकी बहन इंडिया से अप्लाई करती हैं तो जारी बात है उन्होंने सिर्फ ये प्रूव करना है कि जी मैं एक यूके जा रही हूँ, मैं वापस लाजमी आऊँगी, तो उसके लिए फिर कोई उनको कनेक्शन इंडिया का स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि मैं क्यों इंडिया वापस आऊँगी। सेकंड, उनके पास पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियली शी शुड बी वेल ऑफ इन इंडिया, कि ये ना वो समझे कि जी यूके जाके वापस ही नहीं आएंगी। तो इसमें कॉमन सेंस अप्रोच होती है। तो आई थिंक ये कोई लफ्ज़ नहीं है कि जी पैसा कितना दिखाना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस अप्रोच। बिकॉज लोग होते हैं वो जी 20 लाख दिखा देते हैं, होम ऑफिस आगे से कहते हैं, मैंने खुद रिफ्यूज़ल लेटर पढ़े कि जी 20 लाख आया कहाँ से। फिर कुछ लोग 20 लाख दिखाते हैं, साथ एविडेंस देते हैं जी भाई ने दिया, फिर वो कहते हैं जी आपने इसलिए भाई से लिया क्योंकि आप वीज़े के लिए शो करना चाहते थे कि आपके पास फंड्स हैं, हमें लगता है ये सारा आपने ड्रामा किया है, हम आपको नहीं देते। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ वो निकाल सकते हैं, बट आपको इमिग्रेशन रूल को फॉलो करना है, जिसमें रूल ये कहता है कि आपके पास कॉस्ट मीट करने के लिए पैसे पड़े। अब आप कोई पैसे दिखा रहे हैं तो ये नहीं कि वो सारे के सारे जी मैंने इसी के लिए निकाल के रखे हैं, वो कहेंगे जी फिर बाकी आपका गुजारा कैसे। दिस ऑल अबाउट कॉमन सेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैंने पूछना था, मेरी 1 साल पहले डिवोर्स हुई थी, तो मुझे डिवोर्स फॉर्म जब मैंने सिग्नेचर कर दिया था तो मुझे उनका कोई लेटर मसूल नहीं हुआ अभी तक। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, मैं किस तरह वो ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। सॉरी, क्या हुआ जब डिवोर्स हुई? सॉरी, मैं थोड़ा ब्रेक हो गया आपकी आवाज़। जी, डिवोर्स हुई थी, डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिग्नेचर वगैरह कर दिया था। मेरी एक्स वाइफ है, उसको मसूल हो चुका है। अच्छा, डिवोर्स सर्टिफिकेट, डिग्री, एब्सोल्यूट डिग्री नहीं आपको मिली, आप कह रहे हैं? जी जी। ओके ओके, नहीं उसका तो बड़ा आसान तरीका है कि जिस काउंटी कोर्ट में आपने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को दायर किया है उधर कांटेक्ट करें और उनसे बोलें कि जी ये केस नंबर है आपके पास। जारी बात है लेकिन केस सर नंबर मुझे पता नहीं ना, क्योंकि मुझे पोस्ट आई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसमें मैंने एक पोस्ट आई थी मेरे घर में जो मैंने साइन करके रिटर्न कर दी थी। चलें ठीक है, मैं तकरीबन जी जी ठीक है, आप ऐसा करें कि नॉर्मली देखने में आया है, मतलब अगेन डिवोर्स के जब कदीर साहब इधर बैठे होते हैं आप उस वक्त कॉल नहीं करते। मैं इमिग्रेशन का हूँ तो आपने मुझे कॉल करके पूछ लिया। काश आज कदीर साहब इधर बैठे होते जो अगले वीक होपफुली होंगे इधर, तो मैं उनसे 2 मिनट में पूछ लेता। लेकिन कॉमन सेंस जो मैं कॉमन सेंस में बता रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज फैमिली लॉ को मैं कवर नहीं करता, कि नॉर्मली लोग यहीं डिवोर्स प्रोसीडिंग डालते हैं जहाँ वो रहते हैं। तो पहले आप चेक कर लें जिसने प्रोसीडिंग शुरू की थी, अगर आपने की थी तो मोस्ट लाइकली आपने दायर किया होगा अपने लोकल काउंटी कोर्ट में, और अगर आपकी वाइफ ने प्रोसीडिंग शुरू की थी तो मोस्ट लाइकली जहाँ वो उस वक्त रह रही होंगी उधर दायर किया होगा। उसके अलावा दे माइट बी वेरी इजी वे, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर डील नहीं करता। नेक्स्ट वीक कदीर साहब आएंगे, अगर मुझे याद रहा तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, वरना आप कॉल करके उनसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं तुसां कोल सवाल पूछना सी। जी जी पूछिए। कि मेरा केस जिहड़ा है वो पास होया है, पहले जज ने मेरा केस अपील से पास कीता सी जी जी, ते हुन होम ऑफिस ने अपर जज कोलों राइट ऑफ अपील लिया है। ते पूछना ये सी कि कितना टाइम लगना है ये, अगर अपर ट्रिब्यूनल केस जाना है ते कितना टाइम लगना है, कितनी देर बाद हियरिंग होनी है, कि कागज पे होनी है, कि अगो प्रोसेस होना है? ओके जी, बड़ी मेहरबानी। देखें जो हुआ है मैं आपको पहले बता दूं कि आप फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल में गई और आप केस जीत गई। होम ऑफिस के पास ऑप्शन होती है कि वो फिर एक सर्टेन टाइम के अंदर उससे ऊपर वाले ट्राइब्यूनल में, उसी ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डाले कि जी जज से गलती हो गई है। और ये चीज़ वाइस वर्सा भी होती है कि अगर आप खुदा न खास्ता हार जाते और होम ऑफिस जीत जाता तो आप भी ये कर सकते। तो होम ऑफिस ने ये किया और वो परमिशन जो आपने बोला है पेपर पे अलाउ हो गई है। तो अब उस परमिशन के ऊपर हियरिंग होगी, यानी कि एक और जज बैठ के डिसाइड करेगा कि आया इस केस को दोबारा हेयर होना चाहिए या जो होम ऑफिस मांग रहा है वो सब कुछ होगा। तो क्योंकि मैंने कागजात नहीं पढ़े तो मैं ये नहीं बता सकता कि उस नई हेयरिंग के अंदर क्या चीज़ डिसाइड होगी, बिकॉज वो बेस्ड होता है कि होम ऑफिस ने रिक्वेस्ट क्या की है।
इतना बता सकता हूँ कि ये जो हियरिंग होती है परमिशन वाली, जिसको हम हियरिंग बोलते हैं, इस वक्त कोर्ट इसको ईज़िली 7 to 8 वीक्स लगा रहा है। तो मुझे नहीं पता आपका इन राइटिंग कब अप्रूवल आया पेपर के ऊपर, उधर से 7 से 8 वीक लगा लें तो तकरीबन उस डेट के अंदर आपकी हियरिंग आ जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि हियरिंग में क्या होगा, बिकॉज मैंने आपके कागजात नहीं पढ़े। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे 2 सवाल है। मेरे ना 2 बच्चे हैं, एक को तो यहाँ आए हुए 7 ईयर हो गए हैं और दूसरा यहाँ पे बॉर्न हुआ तो उसको 5 ईयर होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है। तो मैंने ये पूछना था कि मैं कौन सा केस लगाऊं, 5 ईयर के बेस पे लगाऊं या 7 ईयर पे, कि बेस्ट ऑप्शन क्या है? थैंक यू जी सो मच। देखें, बेस्ट ऑप्शन तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता, क्योंकि जो पहले आपको मैं डिफरेंस दोनों का बता सकता हूँ, और फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं पता और मैंने आपके काफ़ी और कागजात उसके लिए देख लिए हैं, लेकिन मैं आपको दोनों केसेस आपके समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक है जी 7 साल का केस। 7 साल का केस ये कहता है कि जी आपके बच्चे को इस मुल्क में 7 साल हो गए हैं, एंड वाई डू यू थिंक इट इज़ अनरीजनेबल फॉर योर चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। अगर आप वो वाला वीज़ा जीतती हैं, आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, 2.5 साल का वीज़ा आपको भी मिलेगा, 2.5 साल का वीज़ा आपके बच्चे को भी मिलेगा। ज़ाहिर बात है आपके उस वाले बच्चे को मिल रहा है जिसको 7 साल यहाँ पूरे हुए हैं, तो अंडरस्टैंडेबली जिस बच्चे को 5 साल हुए हैं उसको भी वीज़ा मिलेगा। तो ये वाला केस है। दूसरी तरफ जो MK केस लॉ वाला है, और अगर उसमें आप पूरा प्रोविज़न पे उतरते हैं कि आप इंडिया से हैं और आपने बच्चों की कभी रजिस्ट्रेशन नहीं की, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और 5 साल से ऊपर उनकी एज है, तो आप स्टेट लिस्ट के तौर पे कि जी बच्चा मेरा स्टेट लिस्ट है, उसकी कभी इंडियन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो उसमें जारी बात है इनको पासपोर्ट मिलेगा, और अगर वो पासपोर्ट मिलता है तो आप उसकी बेस पे अपना केस डालेंगे, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ। तो अगर आप दोनों केसेस को इधर इधर देखें, एक में 2.5 साल का वीज़ा मिलना है, एक में सीधा सीधा बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिलना है, तो अगर दोनों को वे करें तो वो वाला केस बेहतर है, पासपोर्ट वाला। लेकिन अगेन फिर वो बात आती है, मुड़ के कह सकते हैं कि तारिक साहब 2 बातें, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ख़र्चा पेपर पढ़े बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनरीजनेबल टेस्ट होता है इस वाली एप्लीकेशन में जिसमें आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलना है। जो ये वाली एप्लीकेशन है जिसमें आप MK केस लॉ की बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शायद होम ऑफिस वाले कुछ अरसे के लिए इन एप्लीकेशंस को होल्ड करें जब तक वो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोसेस ना करें, लेकिन आप बिल्कुल डालें। लेकिन इस एप्लीकेशन की रफली फ़ी, लीगल कॉस्ट नहीं बता रहा, वो डिपेंड करता है हम किन के पास जाएँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या चार्ज करें, बट होम ऑफिस की प्लीज़ मुझे कोट ना करें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट रफली 1200-1100 पाउंड पर बच्चे की कॉस्ट है। तो फिर वो कॉस्ट की भी बात आती है। तो कहने का मतलब कि मैं इन 20 सेकंड्स के अंदर ये नहीं बता सकता कि आप कौन सा रास्ता लें जिस पे आपकी पूरी लाइफ मैटर करती है। तो उसके लिए आपको आराम से बैठना पड़ेगा किसी के पास, ताकि वो आपको ये सारी ऑप्शंस दें और फिर आप देखें फाइनेंशियली आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर पैसा आपके पास कीजिए वो भी अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम 7 ईयर के ऊपर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाई। जी मैं अली बात कर रहा हूँ। मेरा कुछ क्वेश्चन ये है कि मैं 2000 में इधर आया था, ठीक है, उसके बाद जो मैंने असाइलम किया इनसाइड आके, और फिर उसके बाद इन्होंने रिफ्यूज किया, फिर मैंने 2008 में अपना केस रीओपन करवाया, और एक वकील साहब की मेहरबानी से मेरा कुछ केस जो है ना काफी डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने दोबारा रिफ्यूज किया। फिर मैंने केस उठा के दूसरे वकील के पास गया, उन्होंने केस मेरा किया और 3 साल तक उन्होंने होम ऑफिस ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने 2012 में जाके ना मुझे 10 इयर्स की कैटेगरी में डाल दिया, जबकि मेरी इंडेफिनेट बनती थी, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे मेरे 4 हैं और दो बच्चों को 10 इयर्स की बेस पे ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल गए हुए हैं। तो अभी मैं तीसरी दफा मैंने दोबारा वीजा जाने एक्सटेंड होने के लिए, तो 2 दफा तो मैंने फीस पे नहीं की, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपके जो केस काफी पुराना है, इसी वजह से हम आपसे फीस नहीं ले रहे। तो ऊपर उन्होंने कार्ड के ऊपर भी नो पब्लिक फंड लिखा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आया नेक्स्ट टाइम ये मुझसे फीस लेंगे, और दूसरा कुछ ऑप्शंस हैं कि इनको रिक्वेस्ट की जाए कि नो पब्लिक फंड जो है वो खत्म किया जाए मेरे कार्ड से। तो ये इसलिए मैंने आपको फोन किया है, कुछ आप मजीद बता सकते हैं इस मामले में? बड़ी मेहरबानी जी। जहाँ तक देखें फ़ीस की बात है, इट्स हाईली अनलाइकली कि आपसे फ़ीस ना लें। मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन की, क्योंकि अगर आपको फैमिली इन प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे मिला है 2.5 साल वाली एप्लीकेशन, तो वो हर दफ़ा फ़ीस लेते हैं।
तो ये आई डू नॉट नो क्यों आप बोल रहे हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम नहीं ली। मे बी ये कि आपका पुराना केस चल रहा था, आप इवेंचुअली जब जीते हैं उस केस को तो उन्होंने पहली दफ़ा वीज़ा इशू करके दे दिया और आपसे फ़ीस नहीं ली क्योंकि आपका पुराना केस चल रहा था। लेकिन जब भी अब आप एक्सटेंशन करेंगे वो आपसे फ़ीस लेंगे। लेकिन आपने बोला कि मैंने एक और दफ़ा लास्ट टाइम एक्सटेंशन की थी, उन्होंने फ़ीस नहीं ली, तो मुझे उनके हालात का नहीं पता कि किन हालात में आपने एक्सटेंशन की थी और क्यों उन्होंने फ़ीस नहीं ली, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट देखने में आया कि होम ऑफिस की नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि जी आप पैसे दें और आप वीज़ा लें। फिर जहाँ तक बात आती है कि जी क्या मैं, हाँ इससे पहले मैं एक और बात करूँ नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड पे, हाँ एक एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन है एफपी की कि अगर आप डेस्टिट्यूट हैं तो आप बोलें कि जी मुझे फ़ीस माफ़ करें। लेकिन वो फिर डेस्टिट्यूट की डेफिनेशन ये है कि जी आपके पास तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं और उल्टा हाउसिंग एसोसिएशन वालों के घर में रह रहे हैं, सारा हुकूमत आपको ख़र्चा दे रही है। तो आई डू नॉट नो वेदर यू विल क्वालिफाई इन दैट और नॉट। लेकिन उसके लिए फिर बड़ी लंबी डिस्कशन करनी पड़ती है, बट उसके जो चांसेस हैं वो इतने ब्राइट भी नहीं है कि आपको एग्जेम्पशन दे दें वो फ़ीस के अंदर। नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड बड़ा स्ट्रिक्टली वो लोग इसको फॉलो करते हैं और देखने में ये आया कि अनलेस बहुत ही एक्सट्रीम हार्डशिप्स के अंदर आप हों तो शायद वो इसको सुपरसीड कर दें टेम्परेरी तौर पे कि ठीक है आप थोड़े से फ़ंड्स ले लें, अदरवाइज़ तो चांस ही नहीं कि वो नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की प्रोविज़न को हटाएं। हाँ अगर बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप्स में आपकी लाइफ हो जाती है तो बहुत कम चांस है कि उस पर वो टेम्परेरी तौर पे आपको लैप्स दे दें, लेकिन उस पर इतनी उम्मीद लगा के ना बैठिएगा प्लीज़। अली थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं और मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त मैं कॉल ना लूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम है। लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था ब्रेक पे जाने से पहले। ईमेल स्क्रीन पे आ रहा होगा जो मैंने शो के शुरू में कहा था कि हर ब्रेक पे जाने से पहले एक ईमेल एड्रेस आएगा। अगर किसी वजह से मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सकता, आप अपना नाम टेलीफोन नंबर इस ईमेल पे भेज दीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अब आपसे मुलाकात होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।